Yes, good morning, students. Once again, welcome back in social science subject, live class for standard 9. Okay. Good morning, Sorry, sir. good morning. Okay, sorry for coming late. Good morning, sir. Because from today onwards, I again joined the school, so I am taking the class from school. Okay. So, this took me some time because it was the first day after a long gap. So, well, it's manageable. We have started the class around 8:13. Okay, so it may be the class of around 35 minutes. Okay, so well, without wasting time, as I can see, the 32 participants have joined right now. Okay, so good morning to everyone once again, and all of you, please switch on your videos. अपने अपने Sir, वीडियो today ऑन you will show portfolio? No beta, actually just I have to take out from my cupboard, है ना? Okay, sir. So again it may waste some time, 5 to 6 minutes once again. So I will take the portfolio today from my cupboard. So I will show you tomorrow, है ना? Because I have to search out the best portfolios made by the student of last years, ठीक है? So I'll show you portfolio tomorrow, ठीक है? चलिए. So I am going to present the screen. Just a minute, okay? So now this is what the screen right now, okay? I am going to present. So would all of you be able to see the screen? Yes, sir. Okay. So before going for screen, all of you please switch on your video. अपना video on करो so that I would be able to see all the student. Good, Kia Reddy. Very good, Shubham Dhali. The way we are able to see these ना, इन लोगों को हम जैसे देख पा रहे हैं, I want to see each and everyone. So switch on your videos. Good morning, Asavri, Kartike and Divyanka. Video on करो. And it must be on always. Hirak, video on रहना चाहिए. Anjali Singh, Parag, Jiten. Well, okay. So I am going to start sharing the screen. Now, this is what the next topic we are having. France abolishes monarchy and become a republic. Okay. This is what the topic. Now, what does it mean? Okay. So as we discussed in last section, है ना, that in 1791 the National Assembly has established a constitution. 1791 में नेशनल असेंबली ने क्या एस्टेब्लिश किया था? कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया था. यहां तक बात आई समझ में? इज इट क्लियर अप टू? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. उस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्कियल रूल एबॉलिश हो गया, खत्म हो गया, और फ्रांस को क्या बना दिया? रिपब्लिक. ओके, सो ये हम कल कंप्लीट कर चुके थे. और जो लास्ट सेक्शन हमारा था दिस, ओके, सो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, है ना? हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स थे. थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है उमड़ पड़ना. उमड़ पड़ना मतलब बड़े लार्ज स्केल में आना. So thousands of volunteers came in large scale from the provinces. अलग-अलग इलाकों से आए to join the army. They saw this as a war of the people against kings and aristocracy all over Europe, है ना? अब ये लोग इतनी बड़ी संख्या में आर्मी ज्वाइन करने क्यों आए? Because they saw this as a war of the people against king and aristocracy.
तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स इस युद्ध को ज्वाइन करने इसलिए आए क्योंकि वो इस लड़ाई को क्या मानते थे कि ये लड़ाई किसकी है, आम जनता की, किसके खिलाफ, किंग और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ। ठीक है, सो एमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे sang was मरसाई composed by the poet रॉजेट डी आई। ठीक है, तो जब ये वॉलंटियर्स अपने अपने प्रोविंसेस से आर्मी में शामिल होने के लिए आते थे तो झुंड के झुंड इकट्ठा पूरा ग्रुप आता था। ओके, सो दे वेर सिंगिंग द डिफरेंट पैट्रियोटिक सॉन्ग। व्हाई ऑल द स्टूडेंट हैव स्विच ऑफ देयर वीडियोस? वीडियो हमेशा ऑन रखना। चलिए, सो दे वर सिंगिंग डिफरेंट पैट्रियोटिक सॉन्ग, बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वो लोग गाते थे। ठीक है, उन बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग कौन सा है? मरसाई। व्हाट इज द नेम गिवन टू द सॉन्ग? मरसाई। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Yes, सुना sir. है? गुड। Yes, sir. इसके बाद में वंदे मातरम सॉन्ग सुना है? Yes, sir. यस सर। है ना? तो ये जो हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं, जनगण मन, इसको एज ए नेशनल एंथम एक्सेप्ट करने से पहले ये भी क्या था? एक सॉन्ग था। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द डिफरेंट पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वेर संग बाय द वॉलंटियर्स और बाय द फ्रीडम फाइटर। ओके, सो वही का वही किस्सा, वही का वही सिस्टम, कहानी कहाँ की है? फ्रांस की भी है। ठीक है, सो बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं वो उस समय पर फ्रांस के जो वॉलंटियर्स हैं दे यूज्ड टू सिंग। उन बहुत सारे पैट्रियोटिक सॉन्ग में से एक सॉन्ग कौन सा है? मरसाई। ठीक है, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी आई। किस पोएट ने उस सॉन्ग को कंपोज किया था? रॉजेट डी आई। It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. ठीक है, तो ये वाला जो सॉन्ग है ये पहली बार फ्रांस के एक इलाके, एरिया, जैसे हम बोलते हैं ना महाराष्ट्र में विदर्भ है, कोंकण है, मराठवाड़ा है, ऐसी फ्रांस में भी डिफरेंट रीजन्स के नेम थे। तो वन ऑफ द रीजन in France was Marseille. Okay, it was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris, so got its name. तो Marseille नाम के प्रोविंस से जो वॉलंटियर्स आ रहे थे उन लोगों ने ये सॉन्ग पहले गाया था, इसलिए उस सॉन्ग का नाम भी क्या पड़ गया? मरसाई पड़ गया। ठीक है, ओके, so they got its name. The Marseille is now the national anthem of France. और वो जो सॉन्ग है वो आज की तारीख में क्या है? It is the national anthem of France. उसको फ्रांस के नेशनल एंथम के रूप में आज एक्सेप्ट कर लिया गया। Is it clear up to here? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. the revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. अब ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हुआ, युद्ध जो शुरू हुए, इसमें जो कॉमन पॉपुलेशन है, आम जनता है, उन्हें बहुत सारा नुकसान फेस करना पड़ा एंड दे हैव टू फेस द इकोनॉमिक डिफिकल्टी। आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, अब वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी? ठीक है, सो व्हाइल द मेन वेर अवे fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. ठीक है, so while the men were away fighting at the front, front मतलब लड़ने गए थे, तो जब परिवार के मैन, आदमी लोग देश की सेवा के लिए युद्ध लड़ने गए तो
टास्क ऑफ अर्निंग, है ना, घर की देखभाल करने के लिए और खाना कमाने के लिए, है ना, पैसा कमाने के लिए। अब घर पे कौन बची? विमेन बची, ठीक है। सो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. So large section of population मतलब फ्रांस की जो जनता थी उसमें से मैक्सिमम लोग ये मानते थे कि ये जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन है ये 1791 तक खत्म नहीं हुआ है। इस रिवॉल्यूशन को, इस चेंज को और भी आगे हमें लेकर के जाना है, बिकॉज इट गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि इसने जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इट गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी थे उसका जो रिचर सेक्शन था, ठीक है, उसी को पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए। So political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own form of actions, ठीक है। तो जो political clubs थे, यानी फ्रांस में 1791 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पर उसको क्लब बोला है बट बेसिकली क्या थे वो? पॉलिटिकल पार्टीज थे। अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म हुए, ठीक है, और इन ग्रुप्स में लोगों ने वॉलंटरली ज्वाइन किया। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वेर फॉर्म इन फ्रांस एंड दीज वेर ज्वाइंड बाय द पीपल। नाउ दे डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। ये जो पॉलिटिकल क्लब्स बनते थे, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी, इसमें जो कॉमन पीपल है ये लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करते थे और देन दे प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। फिर वो लोग प्लान करते थे कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए हमें क्या करना है। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। ये जितने भी क्लब्स थे, है ना, यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी। क्लब का मीनिंग यहाँ पर समझ में आया? पॉलिटिकल पार्टी। Yes, sir. Political party. ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे बेसिकली ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। सो दीज पॉलिटिकल क्लब्स, ओके, ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे, ठीक है, दे आर बेसिकली द पॉलिटिकल पार्टीज। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब, यानी ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा क्लब हुआ? जैकोबिन क्लब, ओके, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस, ठीक। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी बहुत सारी, उन पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? जैकोबिन्स। इस पार्टी को अपना नाम कहां से मिला? तो पेरिस में एक कॉन्वेंट स्कूल था, सेंट जैकब कॉन्वेंट, ठीक है। तो उसी सेंट जैकब कॉन्वेंट का जो चर्च था, उस चर्च के प्रेमाइसेस में ये लोग अपनी मीटिंग करते थे और इसलिए उस क्लब का, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या पड़ गया? जैकोबिन्स क्लब पड़ गया, ठीक है। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs. इसी तरीके से बहुत सारी जो विमेन्स थी, जो पढ़ी लिखी थी, एंटरप्रेन्योर थी, उन्होंने भी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन की, ठीक है। So about the women club and their efforts we'll discuss later on, ठीक है। यस, हीरक तिवारी, कार्तिकेय, सर, हाँ स्विच, हाँ बेटा संध्या प्लीज। sir, here it is written that
सर मतलब कि रिच पीपल को ही कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, तो सर पुअर को सिर्फ इतना ही राइट था कि वो सिर्फ वोट कर सकते हैं जो 25 से ऊपर थे, ओनली मेंस, दिस वाज द ओनली राइट। बेटा पुअर पीपल को तो वोटिंग राइट था ही नहीं, वे पुअर कौन होगा? सर लाइक वोटिंग राइट, द पीसेंट। बेटा वोटिंग राइट की कंडीशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी तुमने? यस सर पढ़ी थी, मतलब उसमें 25 से ऊपर वाले लोगों को। देखो पहले तो क्या होना चाहिए, देखो वोटिंग राइट्स की कंडीशन क्या थी, पहले तो वो मैन होना चाहिए। यस सर मैन, एंड ऊपर 25 से ऊपर। हाँ तो सारी वुमेन तो निकल गई है ना। Yes, अब मैन होगा 25 साल की उम्र होगी और टैक्सेस ज्यादा भरेंगे। और वो कितना टैक्स पे करता है? एक लेबरर की, एक लेबरर की 3 दिन की सैलरी के बराबर का टैक्स पे करता हो, ठीक है? आया समझ में? Okay sir, means they only have the right to vote. Yes sir. they only have the right to vote, है ना? Okay sir. तो अब इसमें जब ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई तो पुअर पीपल तो वैसे ही बाहर निकल गए, क्योंकि पुअर पीपल क्या टैक्स पे कर पाएगा? No sir. नहीं। बात आई समझ में? Sir, means there was no right, so that's why they were fighting further also. हाँ, सो क्या हुआ, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमियां ऐसी रह गई कि जो पुअर पॉपुलेशन थी उसको बेसिकली कोई राइट्स मिले ही नहीं। Okay, ठीक है? understood. इसलिए उन लोगों का कहना क्या था कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये 1791 तक रुकना नहीं चाहिए, इस रिवॉल्यूशन को कैरीड फॉरवर्ड हम और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोई भी राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये जो पुअर पॉपुलेशन थी इन्होंने अपने क्या बनाने शुरू किए? पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू किया। समझ में आ रहा है? Okay sir. अब इन्होंने जब Yes, अपने sir. पॉलिटिकल क्लब्स बनाए तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स इस पुअर पॉपुलेशन ने बनाए है ना, वो इन पॉलिटिकल क्लब्स के जरिए क्या कर रहे थे? इन पॉलिटिकल क्लब्स को फॉर्म करने के जरिए ये लोग अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। ये लोग अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर डिस्कस करेंगे, हमें हमारे अधिकार कैसे मिले, उन सब चीजों पर डिस्कशन करते थे। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने, उसमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब कौन सा था? इट वॉज जैकोबिन क्लब। समझ में आया? Okay sir. Now, so the members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of society. जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उसमें से अधिकतर मेंबर्स लेस प्रॉस्पेरस मतलब पुअर कैटेगरी, अब हम 100% पुअर नहीं करेंगे, परंतु जो अमीर लोग थे उनकी संख्या जैकोबिन क्लब में बहुत कम थी। मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है? सो कौन कौन थे? स्मॉल शॉपकीपर्स, ठीक है, देन आर्टिजन्स सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। यानी जैकोबिन क्लब में जो मेंबर्स थे उसमें से मैक्सिमम इस कैटेगरी के थे। ठीक है? देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। A large group among the Jacobin decided to start wearing long
स्ट्रिप्ड ट्राउजर सिमिलर टू दोज worn बाय डॉक वर्कर्स। ठीक है, अब बड़ी संख्या में जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे उन्होंने अपने क्लब को सेपरेट शो करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, इस प्रकार की पैंट पहनना शुरू करी जिसमें ऐसी पट्टियां होती थी। ठीक है, दिखाई दे रही हैं? यस सर। दिस टाइप ऑफ ट्राउजर है ना, so ये हो गया लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। नाउ दिस टाइप ऑफ ट्राउजर वाज worn बाय डॉक वर्कर। डॉक वर्कर कौन होते हैं? जो शिप होता है ना, पानी का जहाज जहां पर खड़ा होता है वहां पर जो वर्कर्स काम करते हैं, स्मार्ट होते हैं, इधर से उधर लेकर के जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज डॉक वर्कर्स। ओके, so this was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore knee breeches। ठीक है, so इस प्रकार की ट्राउजर के जरिए जैकोबिन क्लब के मेंबर्स अपने आप को नोबेल्स से डिफरेंट शो करते थे। और नोबेल्स किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे? नी ब्रीचेस। ठीक है, और ये जो पीपल थे दे आर कॉल्ड एज सैंसकुलोटोस। ठीक, सो इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the wearers of knee breeches। ठीक है, सो इसके जरिए ये लोग क्या शो करते थे कि अब नी ब्रीचेस मतलब नोबेल लोगों की पावर्स क्या होने वाली है? एंड होने वाली है। ठीक है, these Jacobins came to be known as sansculottos, literally meaning those without knee breeches। Sansculottos men wore in addition the red cap that symbolized liberty। Women, however, were not allowed to do so। ठीक है, सो जो जैकोबिन क्लब के ये जो मेंबर्स थे इनको क्या कहा जाता था? सैंसकुलोटोस। इफ यू सी दिस फिगर, ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है? Yes, sir. So these are a Sansculottos couple, a man and a woman। Okay, now woman is also wearing a skirt which is having a stripped design। ठीक है, man trouser पहनेगा और separately what the man is wearing? A red cap, है ना? और क्या पहनी हुई है? ये रेड कलर की कैप पहनी हुई है। Got it? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. Yes, So in the, okay, so let us continue. So in the summer of 1792, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। ठीक है, so समर ऑफ 1792 यानी लगभग साल भर बीतने के बाद में जब 1792 के आसपास समर सीजन स्टार्ट हुआ, जैकोबिन प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिजियन। तो जब समर का सीजन स्टार्ट हुआ उस समय पर जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पेरिजियंस, बड़ी संख्या में जो पेरिस के रहने वाले लोग थे, ठीक है, उनका इंस्ट्रक्शन मतलब उनका जो आंदोलन था उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पेरिस में जो कॉमन पॉपुलेशन थी दे वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड। ठीक है, जो पेरिस में आम जनता थी वो फूड की जो प्राइसेस थी, है ना, अनाज की कीमतें बढ़ रही थी, ब्रेड की कॉस्ट बढ़ी हुई थी और उसकी बहुत कमी थी। तो जो कॉमन पॉपुलेशन ऑफ पेरिस थी, पेरिस जो बहुत बड़ा शहर था, है ना, जो फ्रांस की राजधानी था, तो वहां की जो आम जनता थी, आम जनता
फूड प्राइसेस की बढ़ती हुई कीमतों से काफी ज्यादा परेशान थी और गुस्से में थी। तो जैकोबिन ने क्या किया, आम जनता के इस गुस्से का बेनिफिट उठाकर अपना एक आंदोलन या रिवॉल्यूशन खड़ा करने का डिसाइड किया। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, ठीक है, अगस्त 10th ऑफ अगस्त को they stormed the palace of Tuileries, massacred the king guards and held the king himself as hostage for several hours. तो आम जनता की सहायता से, किसकी सहायता से, आम जनता, कॉमन पॉपुलेशन की सहायता से 10th ऑफ अगस्त 1792 को they stormed the palace of Tuileries, है ना, जो राजा जिस पैलेस में रहता था वहां के पैलेस पर, स्टॉर्म्ड का मतलब होता है अचानक हमला करना। तो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे उन्होंने किंग के पैलेस पर अचानक अटैक किया, मास्कर्ड द किंग्स गार्ड, राजा का जो गार्ड था, है ना, उनको सारे गार्ड्स को मार डाला, एंड held the king himself as hostage for several hours, राजा को भी कई घंटे तक बंदी बना करके रखी। यहां तक बात आई समझ में? इज इट क्लियर अप टू हियर? इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. So, later the assembly voted to imprison the royal family. बाद में फिर से जैकोबिन क्लब के लीडरशिप में फिर से एक नई नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। राजा को अरेस्ट कर लिया, पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसको एबॉलिश किया, फिर से एक न्यू नेशनल असेंबली बनी। ठीक है, ये जो नई नेशनल असेंबली बनी, द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इस असेंबली ने रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन मतलब कैद में रखने का डिसीजन सुना दिया। ठीक, अगेन इलेक्शंस वेर हेड, फिर से क्या हुए, इलेक्शंस हुए। फ्रॉम नाउ all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब क्या हुआ, जितने भी मैन थे, यानी अब की बार जब असेंबली फॉर्म हुई तो जितने भी मैन 21 इयर्स या उससे ज्यादा के थे, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी अब वेल्थ की कंडीशन नहीं थी, गॉट द राइट टू वोट। तो 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और 1792 में उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुए, चेंजेस हुए। संध्या, यहां तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक, 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वोटिंग का क्या था, मैन होना चाहिए, 25 इयर्स एज का होना चाहिए, और कितना टैक्स पे करना चाहिए, किसी लेबरर की 3 दिन की वेजेस के बराबर। तो वो वेज वाली कंडीशन खत्म कर दी, है ना? ओके सर। तो रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ मतलब आप पैसे का कोई रोल नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हर व्यक्ति जो मैन है और कितने इयर्स का है, 21 इयर्स और अबव, हाँ, उनको क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा। गॉट इट? ओके सर, इन फर्दर Yes, sir. चैप्टर वुमेन विल आल्सो लाइक रिवॉल्ट फॉर दिस वोट, राइट टू वोट ना? हाँ बेटा, अभी दिस चैप्टर इज अ वेरी लॉन्ग वन, सो इन कमिंग सेक्शंस, ठीक है, we'll also discuss about कि जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें only the men were given the right to vote, okay, so women also struggle a lot, okay, to get the right to vote, okay. Now the right to vote is called as what?
राइट टू वोट को बेटा क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल राइट। राइट टू वोट को क्या कहा जाता है बेटा? पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट। ठीक है, सो women also fought for their political right. ठीक है Sir, at present in France also 18 plus they can vote. बेटा राइट नाउ देखो, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 1792 की सिचुएशन पढ़ी है ना? ठीक है, इट मे Yes, बी sir. कि एज ऑन टुडेज डेट दे माइट हैव डन अदर चेंजेस आल्सो। ठीक है, सो वोटिंग राइट डिपेंड्स डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक देश से दूसरे देश वोटिंग राइट्स डिफर करते हैं, है ना? जैसे आप लोगों के जन्म के पहले, काफी पहले, लगभग 1990 के आसपास, ठीक है, इंडिया में भी इंस्टेड ऑफ पीपल ऑफ 18 इयर्स द वोटिंग राइट वाज अप टू 21। ठीक है, फिर 1991 के आसपास वोटिंग की जो एज है उसको डिक्रीज करके 21 से कहां पर लेकर के आए? 18 पर लेकर के आए। 18। ओके, सो दीज मे बी डिफरेंट। चलिए, सो ये वाला सेक्शन आया समझ में? यस सर। ओके, नाउ दिस, हाँ, दिस न्यूली इलेक्टेड असेंबली was called the convention। तो जो 1791 में जो बनी थी उसको क्या बोला गया था? नेशनल असेंबली। और इस बार का जो रिवॉल्ट हुआ जैकोबिन वाला, जैकोबिन के रिवॉल्ट के बाद में जो नई असेंबली बनी, दिस वाज कॉल्ड एज द कन्वेंशन। ठीक है, नाउ ऑन 21st September 1792 it abolished the monarchy and declared France as a republic। so 21st September 1792 को कन्वेंशन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मोनार्कियल रूल पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाएगा। तो मोनार्कियल रूल क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, और फ्रांस को क्या बना दिया? रिपब्लिक। ठीक, सो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी 1791 में जब पहली बार रिवॉल्ट हुआ था तो फ्रांस वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जब एक साल के बाद 1792 में कन्वेंशन ने जब दोबारा डिक्लेरेशन किया तो अब की बार वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम भी हटा दिया, यानी मोनार्क ही नहीं चाहिए। जब मोनार्क नहीं है तो क्या होगा? इट इज ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ इन रिपब्लिक देयर इज नो Yes, now ask your question। सर अभी कन्वेक्शन असेंबली बनने के बाद जो पुरानी असेंबली थी उसका पूरा रोल ही खत्म हो गया, मतलब वो अभी तो न्यू असेंबली पूरी बन चुकी है। हाँ, अभी पुरानी असेंबली को डिसमेंटल कर दिया है ना सर। न्यू असेंबली और न्यू पीपल, मतलब पूरे न्यू पीपल सारे लेके आए उन लोगों ने असेंबली में। देखो, जो न्यू असेंबली बनी है ना, न्यू असेंबली पर अब किसका कंट्रोल था? जैकोबिन्स का। किसका था? जैकोबिन्स का कंट्रोल था। अब जब न्यू असेंबली बनी, जिसको अब क्या नाम दिया? कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन में यदि पुरानी असेंबली के कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते थे, है ना, और यदि ये लोग अलाउड करेंगे तो दे कैन ज्वाइन द न्यू असेंबली ऑल्सो। समझ में आया? ओके सर। ठीक है भाई, जैसे अभी हमारी कंट्री इंडिया है ना, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर कांग्रेस छोड़कर किसको ज्वाइन कर लिए? बीजेपी को, है ना? यस सर। तो वही का वही काम हुआ। अभी पुरानी असेंबली थी, गई, एबॉलिश हो गई,
नए लोग पावर में आ गए। यदि पुराने लोगों ने न्यू असेंबली ज्वाइन कर ली तो दे कैन ज्वाइन। Okay, sir. Understood. Okay, so after the formation of the republic, King Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason। ठीक है, इसके बाद में लुई 16 को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चला, चार्ज ऑफ ट्रिजन। ट्रिजन का मतलब होता है देश के खिलाफ गद्दारी करना। तो गद्दारी के आरोप में, ठीक है, उस पर मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। On 21st January 1793, he was executed publicly at a place de la Concorde। तो 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली मतलब आम जनता के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। पेरिस में एक प्लेस है, स्थान है, जिसका नाम है डी ला कॉनकॉर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनी met with the same fate short after। ठीक है, उसके कुछ समय के बाद में जो क्वीन थी मैरी एंटोनी, उसको भी फांसी की सजा दे दी गई। Got it, students? Okay. सर ये लुईस 16 को, सर लुईस 16 को फांसी देने की सजा पहले जैकोबिन्स ने ऑर्डर नेशनल असेंबली को दी, देन नेशनल असेंबली गेव दिस ऑर्डर। बेटा जैकोबिन्स तो जैकोबिन क्या थी? पॉलिटिकल पार्टी थी। यस सर। अब जैकोबिन के कुछ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स किसमें? नेशनल असेंबली में शामिल थे। ओके सर। तो अब सजा देना है नहीं देना है, क्या करना है, वो डिसीजन कौन लेंगे? नेशनल असेंबली लेंगे। नेशनल असेंबली, यस सर, है ना? ओके सर। भाई देखो, जैसे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म की, ठीक है, ओके सर। परंतु डिसीजन कौन लेगी? भारतीय जनता पार्टी लेगी इस कंट्री को चलाने का, या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। गॉट इट? तो वही का वही काम जो था इस केस में भी था। ठीक है, ओके सर। The Jacobin Club was a party and they formed the government, that is what the convention। ठीक है, Okay, चलिए, sir. so we are Okay, finding the session here only। Okay, that's all for today live class, friends। Thank you, goodbye। Thank you, sir. 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 Okay, goodbye, friends। Thank you।